یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ شیخ یاسین سے خبریں سنیے۔ لوک سبھا انتخابات کے 5ویں مرحلے کی چناؤ مہم ختم ہونے میں محض 2 دن باقی، سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اور نامزد امیدوار کر رہے ہیں یکے بعد دیگرے چناؤ جلسوں اور روڈ شوز کا انعقاد۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی کے مطابق ان کی حکومت لوگوں کے ساتھ کیے گئے ہر ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے پرعزم۔ بارامولہ پارلیمانی حلقے میں چناوی سرگرمیاں عروج پر، پرامن اور آسن چناؤ کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کو دی جا رہی ہے حتمی شکل، اور لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے روحانی عروج اور تقوی حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی ضرورت پر دیا زور۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ 18ویں لوک سبھا انتخابات کے 5ویں مرحلے کے لیے چناؤ مہم ختم ہونے میں اب جبکہ محض 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس مرحلے کی چناؤ مہم سنیچر کی شام کو اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی چناؤ مہم میں تیزی لائی ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے اعلیٰ رہنما اور نامزد امیدوار جگہ جگہ پر چناؤ جلسوں اور ریلیوں کا انعقاد کر کے رائے دہندگان کو اپنی جانب راغب کرنے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اتر پردیش کے جونپور ضلع میں ایک چناوی جلسے سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سی اے اے مودی کی گارنٹی کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے اور اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بی جے پی حکومت لوگوں کے ساتھ جو بھی وعدہ کرتی ہے اسے پورا کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ترقیاتی عمل دلی اور ممبئی جیسے شہروں تک ہی محدود ہوا کرتا تھا، تاہم اب ایودھیا اور کاشی جیسے مذہبی مقامات پر بھی نمایاں ترقی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم اعظم گڑھ ضلع کے لال گنج علاقے میں چناؤ ریلیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی اور کانگریس ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں اور یہ دونوں جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ بقول ان کے اقربا پروری اور رشوت خوری سے کام لیتے ہیں۔ بی جے پی لیڈر نے پچھلے 2 دن کے دوران یکے بعد دیگرے چناؤ ریلیوں سے خطاب کیا۔ دوسری جانب کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے آج رائے بریلی میں چناؤ مہم چلائی۔ اس موقع پر انہوں نے بی جے پی کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اس پارٹی نے بقول ان کے غیر قانونیت کو فروغ دیا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بانڈا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے الزام لگایا کہ ریاستی سرکار اور مرکزی سرکار مل کر رشوت خوری میں ملوث ہیں۔ بی جے پی کے ایک اور سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ 5 برسوں کے بعد ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر سے ایک مضبوط حکومت کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیتا مڑھی بہار میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نریندر مودی نے لوگوں کے ساتھ مندر تعمیر کرنے کا وعدہ کیا تھا جسے پورا کیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس نے ہمیشہ رام مندر معاملے میں لعت و لال سے کام لیا۔ نیشنل کانفرنس کی طرف سے آج سنبل بانڈی پورہ میں ایک چناؤ جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے نائب صدر اور بارامولہ سیٹ کے این سی امیدوار عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کی پارٹی ہمیشہ لوگوں کی ترجمانی کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ جماعتیں ووٹ بینک کے لیے منفی سیاست سے کام لے رہی ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں تاکہ ایسے امیدوار کو چنا جا سکے جو پارلیمنٹ میں ان کے معاملات اور مسائل کو اجاگر کر سکے۔ دریاستا نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنی رہائش گاہ پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 5 برسوں سے لوگ بقول ان کے انتظامیہ کی غلط پالیسی سے گوناگون مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ زمینی سطح پر پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں۔ واضح رہے کہ 5ویں مرحلے کے تحت جموں کشمیر کے بارامولہ پارلیمانی حلقے سمیت 8 ریاستوں میں 49 پارلیمانی حلقوں پر 20 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔
बारामुल्ला हल्के में भी चुनावी सरगर्मियां अपनी उरूज को पहुंच चुकी हैं और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नामजद उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार मुतवातिर चुनाव रैलियों का इनेकाद करके लोगों को अपने हक में वोट डालने की तरगीब दे रहे हैं। इस हल्के में चुनाव के पुरअमन और शिफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सलामती समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। चुनाव में लोगों की बढ़ चढ़कर शिरकत को यकीनी बनाने और राय दही की शरह में इजाफा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे। कुपवाड़ा जिला जो कि बारामूला पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों पर हैं। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख नजदीक आ रही है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां और चुनाव में हिस्सा ले रहे उम्मीदवार जिला के तुलवारज में गाँव और बस्तियों में जाकर वोटरों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। इस हवाले से बड़ी बड़ी इंतखाबी रैलियां निकाली जा रही हैं। कुपवाड़ा जिला के मुख्तलिफ इलाकों को सियासी पार्टियों के रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस कुपवाड़ा ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी और सख्त नफाज के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं, जो कि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सख्ती से अमल दरामद पर नजर रख रही हैं। कुपवाड़ा जिला की 6 असेंबली नशिस्तों करना, त्रेगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा और लंगेट में कुल 5,35,597 वोटर अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए 607 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जहां पर बिजली, पानी, फर्नीचर और दूसरी जरूरी सहूलियात के बेहतर इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। दरियासना जिस्मानी तौर नाखेज और उम्र रसीदा अफराद के लिए होम वोटिंग आज इख्ताम पजीर हुई, जिसमें कुल 412 वोटों में से 399 वोट डाले गए। इलेक्शन कमीशन के इन इक़दामात की काफी सताइश की जा रही है। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये पार्टी कह रही है कि उन्हें लोकसभा इंतखाबात के दौरान 400 से ज्यादा सीटें चाहिए, क्योंकि वो बकौल अरविंद केजरीवाल के आईन बदलना चाहते हैं और रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का पूरा निजाम हमेशा से रिजर्वेशन के खिलाफ रहा है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि इत्तेहाद लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है। पार्लिमानी इंतखाबात के छठे मरहले के तहत भी चुनावी सरगर्मियां शद्दोमत से जारी हैं। एक तरफ चुनाव ड्यूटी पर मामूर किए जा रहे अमले को तरबियत फराहम की जा रही है, दूसरी तरफ हिफाजती इक़दामात समेत दीगर लाजमी इंतजामात को भी तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। नीज स्वीप के तहत बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद भी जारी है, ताकि लोगों बिलखसूस पहली मरतबा अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने वालों में वोट की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जा सके। इस मरहले के तहत 25 मई को मुल्क की 7 रियासतों के 57 पार्लिमानी हलकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके में भी वोट डाले जाएंगे। इस हलके में पहले 7 मई को वोटिंग होना तय थी, ताहम बाद में इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग की तारीख को तब्दील करके 25 मई को वोटिंग कराने का फैसला किया। इधर 7वें और आखिरी मरहले के दौरान 7 रियासतों और एक यूटी में पहले 57 पार्लिमानी हलकों में 1 जून को वोटिंग होगी। तमाम मरहलों के तहत डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को अमल में लाई जाएगी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कुछ नुमाया उम्मीदवार इसी मरहले के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिन्होंने वाराणसी पार्लिमानी हलके के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के तकमील शुदा 4 मराहिल के दौरान अब तक 45 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। एक बयान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि आम इंतखाबात 2024 के पहले 4 मरहलों में मजमूई तौर पर 66.95% राय दहिंदियान ने अपने आईनी हक का इस्तेमाल करते हुए वोट कास्ट किए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इतनी ज्यादा शरह में वोटिंग से भारत के वोटरों ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है। कमीशन ने वोटरों से अपील की है कि वो बाकी मानदा 3 मरहलों में भी जोक दर जोक अपने वोट कास्ट करें। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पाकीज़ा जिंदगी इख्तियार करने से ही रूहानी उरूज और तकवा हासिल किया जा सकता है। उन्होंने इन बातों का इजहार आज कटरा में पूज्य बाई श्री रमेश बाई ओझा जी की तरफ से मुनक्कदा किए गए श्रीमद भगवत कथा में शिरकत करने के दौरान किया। उन्होंने इस मौके पर वैधांतिक अमल के 3 अहम सुतूनों श्रावण, मनन और निधि ध्यासन को उजागर करते हुए जोर दिया कि समाज में यकजहती के रिश्तों को मुस्तहकम करने के लिए गुरुजी की तालीमात पर अमल किया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो भगवत के पैगाम के आम करने में कलीदी रोल अदा करें और वो लोगों को समाज में आपसी रवादारी, इंसानियत, मसावत और उखुवत के अक़दार को तक़वियत बख्शने की जानिब राग़िब करें। बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने आज जम्मू में कई अवामी वफूद के साथ बात की। एक वफद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया मनशियात के धंधे में मुलव्विस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इस बिद्दत से मुल्क के नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। उन्होंने बाकी वफूद के साथ बात करते हुए कहा कि उजागर किए गए मामलात को एलजी इंतजामिया की नोटिस में लाया जाएगा ताकि लोगों की राहत रसानी हो सके। हुकूमत ने ज़ियादतीज़, आर्ज़ कलब और जिगर की बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 41 आम अद्वियात और 6 दीगर मरकबात की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। ये फैसला नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA की एक मीटिंग के दौरान लिया गया ताकि अवाम को मुख्तसर नरखों पर अहम अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। फार्मा कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वो अद्वियात की कीमतों में कमी से मुतल्लिक जानकारी फौरी तौर से डीलरों और स्टॉकिस्ट्स तक पहुंचाएं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए जम्मू से सांझी छठ हेलीकॉप्टर सर्विस जून महीने से दोबारा शुरू कर रही है। इस सहूलत से श्रद्धालु कलील मुद्दत में वैष्णो देवी गुफा के दर्शन कर सकते हैं। ये सहूलत हासिल करने वाले श्रद्धालुओं को भवन से 2.5 किलोमीटर पहले पंछी हेलीपैड पर छोड़ दिया जाएगा और उनके लिए खुसूसी दर्शन का एहतमाम किया जाएगा। श्राइन बोर्ड के मुताबिक सेम डे रिटर्न के तहत पैकेज में हर श्रद्धालु को 35,000 रुपए, जबकि नेक्स्ट डे रिटर्न के तहत पैकेज में हर श्रद्धालु को 50,000 रुपए अदा करने होंगे। डायरेक्टर सेरीकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज जिला शोपियां का दौरा करके वहां सेरीकल्चर शोबे की पेशरफ्त और गुंचा ऑपरेशन की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। उन्होंने जिले में कायम कई मलबरी नर्सरियों का मुआयना किया। उन्होंने जिले के किसानों, बिलखसूस बेरोजगार नौजवानों पर जोर दिया कि वो आगे आकर इस सन्नत में दस्तयाब सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करके अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा करें। जैसे कि पहले खबर दी जा चुकी है कि स्लोवाक के वजीर आजम रॉबर्ट फिको को कल ब्रेटिस्लावा के शुमाल मशरिक के एक छोटे कस्बे में गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। वहां के वजीर दिफा रॉबर्ट कालिनाक ने कल शाम कहा कि वजीर आजम की 3 घंटे तक जराही अमल में लाई गई। इस वाक़े की बैनुल अक़वामी सतह के लीडरों ने काफी मजम्मत की है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने स्लोवाक के वजीर आजम पर हमले को तशद्दुद का एक बदतरीन वाक़ा करार दिया है। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी रॉबर्ट फिको पर हुए हमले पर तशवीश का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिली की कार्रवाई करार दिया। उन्होंने वजीर आजम फिको की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुख की इस घड़ी में स्लोवाक रिपब्लिक के लोगों के साथ है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस था। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।